Good evening, children. I am Amlesh Kumar. Now, today in this video, I will discuss a string function. You can see in my screen, single row functions are classified in three categories. The number one is numeric function. In numeric functions, three functions are used: power, or you can say pow, round, mod. So in the previous video, I had discussed pow or power, round, and mod. Now in this video, I will discuss all the string functions in MySQL or MySQL, you can say. The first one you can see ucase, next one is lcase, ucase, or you can say uppercase, lcase you can say lowercase, mid, length, left, right, inster, altrim, trim, rtrim, these functions. Now first I will tell you that in exam, in IP exam, or you can say CS or IP, this time in term 2 CBSE 12th exam, 5 marks questions will ask from this string functions, and you people have seen in sample paper also, and I had discussed many times, but I found many students have a problem still in this string function. So that's why I thought कि इस पर वीडियो बनाया जाए, एंड आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो स्ट्रिंग फंक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सीबीएसई में तो वह आप सॉल्व कर पाएंगे, मीन्स एटलीस्ट 5 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं. मैं फिर से बात कर रहा हूँ किस किस फंक्शन के बारे में बात करूँगा. यू केस यू कैन से अपर, एल केस और यू कैन से लोअर, मीड, लेंथ, left, right, inster, altrim, rtrim, and trim. Now mid you can see another name, or you can say mid subster or substring. So let's start. You can see I have opened NCERT book here, so I will discuss each and everything. What is the string function? So you people are knowing this thing. A string functions means what? Can perform various operations on alphanumeric data which are stored in a table. They can be used to change the case, uppercase, lowercase. So means basically you can say a string functions जो है वो string पर काम करते हैं. So details पे बात करते हैं. Practically I will show you also. The first see the U case, or you can see upper. So see the syntax of this one: ucase or uppercase, ucase or uppercase. So question will ask ucase or uppercase, means question will ask either in, you can say ucase or upper, both are same. In this function the parameter will be a string, and what this function is used, what this function या function काम क्या करता है, यूज क्या है इसका, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस. तो उसको चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं. मैंने MySQL ओपन कर चुके हैं और उस पर देखते हैं. तो वो सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं जो भी फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं. तो आप यहाँ पर अपर और जो भी स्ट्रिंग है तो आप लोअर केस में लिखेंगे, तो जो इसका आउटपुट होगा वो क्या करेगा, उसको अपर केस में चेंज कर देगा. यू कैन सी हियर अमलेश कुमार, आई हैव रिटन माई नेम. सो अमलेश कुमार यहाँ लोअर केस में था, ये फंक्शन क्या किया, इसको अपर केस में चेंज कर दिया. इसको मैं फिर से एक बार यूज करना चाहूँगा. सेलेक्ट अपर एंड देन फ्रॉम डुअल. ठीक है, डुअल is a dummy table. Dual is a dummy table having one row and one column. It is used for only the simple basic calculation के लिए यूज होता है. तो यहाँ पर आप डुअल नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डुअल काम करता है यहाँ पर. तो यहाँ मैंने अपर यूज किया है. इन द प्लेस ऑफ अपर यू कैन यूज यू केस. आउटपुट विल बी सेम यू केस. सो यू कैन सी हियर रिजल्ट विल बी सेम. नाउ नेक्स्ट हम मूविंग टू, यस एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, यदि आप किसी टेबल से, किसी टेबल का जो कॉलम है आप उसको
सपोज नेम नाम का कॉलम है और उसका सारा लेटर को आप अपर केस में करना चाहते हैं, तो जो पैरामीटर पास करेंगे तो दैट पैरामीटर विल बी नॉट इन डबल कोड, वह उस कॉलम का नाम होगा। एंड फ्रॉम डुअल ना होकर जो टेबल से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, सपोज स्टूडेंट से डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो फ्रॉम स्टूडेंट हो जाएगा। नाउ द सेम वे यू कैन यूज व्हाट एल केस। तो एल केस क्या करेगा, आपका जो कैपिटल में होगा उसको क्या करेगा, लोअर में चेंज कर देगा। तो यहाँ देखेंगे जो अमलेश लिखा हुआ उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, रेस्ट लोअर है, तो यहाँ पर ए भी जो है वह छोटा हो जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ एल केस। और यू कैन सी लोअर, आप एल केस यूज करें या फिर आप लोअर यूज करें, आउटपुट विल बी सेम। सो अपर केस और लोअर केस, यू केस और एल केस, आई थिंक एक क्लियर हो चुका है आपका। Now moving to the next function. Next function is meet function. Yes, इसको ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट मीट यूज कीजिए और मीट का जो सिंटैक्स होगा, एक कंप्लीट स्ट्रिंग आप ले लीजिए यहाँ पर एंड जस्ट स्लाइसिंग करना है आपको। बड़ी स्ट्रिंग में से एक छोटा स्ट्रिंग निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो स्ट्रिंग होगा। दूसरा जो है आपको कहाँ से कहाँ लेना है, तो सपोज हम थर्ड पोजीशन से लेना चाहते हैं, कितना जाना चाहते हैं, 3 जाना चाहते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग पास किया, AMLESHKUMAR। अब इसके देखिए स्टार्ट जो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग आएगा मेरा, वो कहाँ से आएगा, तीसरे पोजीशन पे कौन है, तो काउंट करें 1 2 3। 3 में हमारा एल है और यहाँ से काउंट होगा 3 नेक्स्ट, तो 1 2 3। तो आप देखेंगे यहाँ LES इसका आंसर आएगा। तो ए हमारा मीट क्या कर रहा है कि बड़े स्ट्रिंग से छोटे स्ट्रिंग को निकालना, और दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द न्यू स्ट्रिंग एंड अप टू व्हाट, आपको कहाँ तक जाना है वह है यहाँ पर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 5 पास करेंगे तो आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं आउटपुट, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 3 मीन्स 1 2 3 एल से स्टार्ट होगा। कितने कैरेक्टर तक जाना है, 5, तो आपको यहीं से काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, यानी आउटपुट जो आएगा वो LESH, और ये ब्लैंक भी हमारा एक कैरेक्टर होता है। तो आई थिंक दिस मीट इज क्लियर। आप इसको मीट बोलें या आप सबस्टर मीट फंक्शन बोले या सबस्टर बोले, आउटपुट विल बी सेम। या नहीं तो फिर आप इसको सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। मीट, सबस्टर और सब स्ट्रिंग, आउटपुट विल बी सेम। थोड़ा सा इसमें हम चाहते हैं कुछ नेगेटिव वैल्यू पास कर दे, तो नेगेटिव वैल्यू पास कर दे। सपोज मैंने यहाँ पास कर दिया तो मैंने पास कर दिया -6। तो आप नेगेटिव के बारे में जानते हैं, पॉजिटिव मतलब राइट साइड से काउंट होता है, नेगेटिव मतलब राइट साइड से काउंट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग पोजीशन 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 से स्टार्ट हुआ मतलब ब्लैंक से स्टार्ट होगा एंड जाएगा नेक्स्ट 5। तो 1 2 3 4 5 मीन्स आउटपुट आएगा KUME। सो देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट आता है, KUME। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, यू मस्ट जस्ट फोकस नीड, सबस्टर और सब स्ट्रिंग, ये क्या है, बराबर है, या आप कह सकते हैं तीनों एक ही हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा है उसके बारे में बात करते हैं, वो है लेंथ। लेंथ आप सभी को पता है, जो भी आप स्ट्रिंग है उसका लेंथ फाइंड करना है। सपोज मैं अपने नाम का लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको जो सिंटैक्स में जो होगा लेंथ में वह स्ट्रिंग होगा। एंड देखिए मैंने लिखा यहाँ सेलेक्ट लेंथ, और मेरे नाम में कितने लेटर हैं, कितने ही हैं, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं पहले। तो स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर विल बी 12। I think length spelling I have written wrongly.
थोड़ा सा यहाँ पर उसको ठीक करते हैं। देखिए यहाँ लेंथ हमारा जो हो गया 12 हो गया। तो लेंथ फंक्शन आपको क्लियर हो गया। एक यहाँ पर थोड़ा बताने की ज़रूरत है कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। यदि हम मान के चलिए ऐसा दिए, आप कहेंगे सर यहाँ तो ब्लैंक है तो यहाँ पर तो 0 आना चाहिए, बट यहाँ 5 स्पेसेस है तो आउटपुट यहाँ पर 5 होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंथ फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो फंक्शन है वह है हमारा लेफ्ट राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी, खासकर जो CBSE में जो क्वेश्चन आएंगे अभी माई से, इसमें तो लेफ़्ट और राइट का क्वेश्चन आना ही है 100% आना ही है। चलिए लेफ़्ट और राइट क्या करता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है ना, लेफ़्ट में क्या होता है कि आपसे बोला जाएगा कि किसी का जो नाम है उसका फर्स्ट 3 लेटर ही दिखाइए। आप किसी भी स्टूडेंट का नाम या सिटी का जो है, जो एड्रेस का, उसका फर्स्ट 3 लेटर ही दिखाइए, बाकी को देखना नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि लेफ्ट से कितना लेटर आप चाहते हैं देखने के लिए। तो मान के चलिए कि मैं अपना नाम यहाँ लिखा अमलेश कुमार, और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाम का मतलब मेरे नाम का फर्स्ट 3 लेटर ही देखना है, बाकी हमको मतलब नहीं है। तो कितना लेटर देखना है, लेफ्ट से कितना देखना है आपको, वो डाल दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ सेलेक्ट लेफ्ट, स्ट्रिंग दे दिया अमलेश कुमार, मेरे नाम में 12 कैरेक्टर्स है, लेंथ कितना है 12 है। बट आई डोंट वांट टू सी ऑल, आई वांट व्हाट, फर्स्ट 3 लेटर। फर्स्ट मीन्स व्हाट, लेफ्ट साइड से 3 लेटर चाहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो आउटपुट आएगा AML, यही आएगा। काउंट करें 1 2 3 दिस वन। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेफ्ट फंक्शन। नाउ जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट जो है आप राइट से केवल चाहते हैं कि राइट से हमारा 3 लेटर्स दिखे। तो यहाँ पर राइट जस्ट अपोजिट ऑफ लेफ्ट फंक्शन, राइट यहाँ पर अब दे दीजिए। यहाँ पर राइट से भी मान के चलिए कि कितना चाहते हैं हम, कुमार चाहते हैं 1 2 3 4 5, तो आई वांट 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ से तो कुमार आ गया। तो लेफ्ट और राइट ये ध्यान रखेंगे। और भी लेफ्ट और राइट में आप सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। एंड आई विल ट्राई कि जितने भी सारे क्वेरी होंगे तो हम आपको जरूर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप लेफ्ट एंड राइट दोनों फंक्शंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है वह है हमारा आई थिंक एल्ट्रीम आर्ट, यस, लेफ्ट राइट हो गया, इनस्टर हो गया, इनस्टर और इनस्टर। चलिए इनस्टर के बारे में बात करते हैं। इनस्टर के बारे में देखिए थोड़ा थ्योरी जानना जरूरी है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर। ये सबस्टर नहीं है, इनस्टर है। देखिए इनस्टर में क्या है कि आप क्या करते हैं, किसी स्ट्रिंग में, बड़े स्ट्रिंग में से कोई छोटे स्ट्रिंग को सर्च करते हैं कि वो अवेलेबल है। यदि अवेलेबल है तो किस पोजीशन पर अवेलेबल है, और यदि अवेलेबल नहीं है तो मैसेज आना चाहिए। तो पहली बात देखिए यहाँ पर आपके 2 पैरामीटर होंगे। एक तो आपका इनस्टर में जो स्ट्रिंग देंगे सो, और सब स्ट्रिंग मीन्स व्हाट स्ट्रिंग मीन्स कौन सा स्ट्रिंग सर्च करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिंग आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक यहाँ लिखा हुआ है, क्वेरी लिखा हुआ है सेलेक्ट इनस्टर इन्फॉर्मेटिक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर सर्च कर रहे हैं MA। तो MA देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए MA मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो देखेगा MA जो है वह किस पोजीशन पर है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 से हमारा MA स्टार्ट, मतलब MA जो है हमारा वह 6 पोजीशन पर आ रहा है। यदि ये नहीं होता, MA नहीं होता, MA इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो यहाँ आउटपुट हमारा 0 आ जाता। तो ध्यान रहे इनस्टर क्या करता है, रिटर्न्स द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब हो सकता है कि एक जो बड़े स्ट्रिंग में जो आप सब स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हो वो 2-3 जगह हो, तो वहाँ 2-3 जगह का जो है वो पोजीशन नहीं दिखाएगा। जो फर्स्ट ऑकरेंस जो सबसे पहला मिलेगा उसका ऑकरेंस दिखाएगा। सब स्ट्रिंग द गिवन स्ट्रिंग रिटर्न 0 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली और अच्छे ढंग से समझते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट इनस्टर, और यहाँ पर मैं अपना ही नाम ले लेते हैं, और इसमें हम चाहते हैं सबसे पहले हम चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए सब स्ट्रिंग जो आना चाहिए वह
एनी आना चाहिए। और एनी हमारे में अभी देखिए मेरे नाम में एनी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा इस सब स्ट्रिंग, देखिए ये हमारा स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है जो हमें सर्च करना है इस स्ट्रिंग में, तो एनी नहीं है अवेलेबल, तो रिजल्ट जीरो, इट विल रिटर्न जीरो। ध्यान रखेंगे जो स्ट्रिंग को खोज रहे हैं यदि वो नहीं मिले तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एम आर करते हैं या एम ए करते हैं, एम ए करते हैं, इस स्ट्रिंग में क्या सर्च करना है, एम ए। तो देखिए यहाँ पर एम ए, देखिए यहाँ पर ए एम तो है, क्योंकि यहाँ पर हम एम ए दिए हुए, तो ये यहाँ पर मत देख लीजिएगा कि उल्टा नहीं देखेंगे, एम ए नहीं देखेंगे, तो ए एम है यहाँ पर। इस भी अमलेस में एम ए नहीं है, कुमार में एम ए है, तो नाउ जस्ट अब क्या करेगा, सब स्ट्रिंग जो है वह स्ट्रिंग में मिल रहा है, तो क्या है पोजीशन क्या है, हाउ विल काउंट दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लैंक, यू हैव टू काउंट 8 9 10, जो पोजीशन पर आ रहा है वो 10 पोजीशन पर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आ रहा है पोजीशन वो 10 आ रहा है। तो दो चीज़ ध्यान देने की बात है, इनस्टर जो है वह क्या करता है, एक तरह से सर्च करने का बात करता है, सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में सर्च करने का काम करता है। यदि वह स्ट्रिंग नहीं अवेलेबल है तो इट विल जीरो, वह जीरो रिटर्न करेगा। यदि वह स्ट्रिंग है तो किस पोजीशन पर है, जो पहला ओकरेंस हो रहा है वह रिटर्न करेगा। एक इसमें थोड़ा और दिखाना चाहेंगे हम, क्या दिखा दें, एम अभी देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि केवल एम को सर्च करते हैं, एम को देखिए कुमार में एम हमारा देखिए किस किस जगह पर है, तो ए एम, एम हमारा यहाँ मिल रहा है, दिस इज सेकेंड पोजीशन, देन हमारे देखेंगे यहाँ पर 10th पोजीशन में मिल रहा है। तो यहाँ जो एम जो है वो हमारा दो जगह फाइंड आउट हो रहा है, बट जो उसका पोजीशन रिटर्न होगा वो फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ हो रहा है, सेकेंड पोजीशन पर हो रहा है, तो इट विल रिटर्न व्हाट, क्या देगा, ये 2 देगा। तो आई होप चिल्ड्रन की इन हस्टर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ना ही होगा आपको। जब भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर इस वीडियो को देख ले, ठीक है। और यदि आप क्वेश्चन बनाते वक्त यदि प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं आपको सोल्यूशन दिखा सकूँ। नेक्स्ट है एल ट्रीम, आर ट्रीम और ट्रीम, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए बात करते हैं ट्रीम। ट्रीमिंग आप जानते हैं बस कटिंग करने के लिए, तो एल ट्रीम क्या करता है, तो मैं पहले इसको चलिए एल ट्रीम का बात करते हैं। एल ट्रीम ये भी स्ट्रिंग फंक्शन है और यहाँ पर हमें क्या होता है, एक ट्रीम करने का काम करता है। और क्या ट्रीम करने का काम करता है, ब्लैंक स्पेस को ट्रीम करने का काम करता है। जो हमारा ब्लैंक स्पेस होता है, ध्यान रहिए हमारा क्या काम करता है, जो ब्लैंक स्पेस होता है उसको ट्रीम करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट साइड से जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको हटा देगा। देखिए लेफ्ट साइड से जो ब्लैंक स्पेस है उसको हटा देगा। सेम वे यदि आप बात करें आर ट्रिम का बात करें तो थोड़ा स्पेस दे दें यहाँ पर, और यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ एल हम यदि यहाँ पर बात करें तो आर कर देंगे, तो वह राइट साइड से जो ब्लैंक स्पेस है उसको हटा देगा। ओनली ब्लैंक स्पेस, ध्यान रहे ओनली ब्लैंक स्पेस। तो देखिए लेफ्ट साइड का ब्लैंक स्पेस नहीं हटाया, राइट साइड का ब्लैंक स्पेस को हटा दिया। अब आता है ट्रीम। तो ट्रीम में यदि बात करें यहाँ पर तो देखिए अभी यहाँ पर ऊपर वाले में क्या था, लेफ्ट स्पेस को नहीं हटाया, राइट स्पेस को हटा दिया। अब यहाँ पर केवल ट्रीम यूज करेंगे तो दोनों साइड से जो ब्लैंक स्पेस होगा वह हट जाएगा और अमलेश कुमार हमारा स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर तो ध्यान रहे एल ट्रीम, आर ट्रीम और ट्रीम। एल ट्रीम लेफ्ट साइड से ब्लैंक स्पेस स्ट्रिंग में जो होगा स्टार्टिंग से जो लेफ्ट साइड से होगा वह रिमूव होगा, और ट्रीम ब्लैंक स्पेस ओनली राइट साइड से होगा। और ट्रीम जो होगा ओनली ट्रीम आप यूज करते हैं तो दोनों लेफ्ट और राइट, बीच वाले नहीं खत्म होगा, ध्यान रहे लेफ्ट और राइट साइड से जो है ब्लैंक स्पेस को वह क्या करता है, रिमूव कर देता है। ट्रीम तो यहाँ तक तो है, बट ट्रीम का और भी काम है और उस ट्रीम के काम को मैं बताने जा रहा हूँ। क्या काम है स्ट्रीम के बारे में ध्यान रखें। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्लैंक स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलिए एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि स्टार है, और इसमें भी ए भी स्टार है, ठीक है। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई स्पेशल कैरेक्टर ब्लैंक नहीं हो, स्पेशल कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से रिमूव करें। स्पेशल कैरेक्टर अब यहाँ स्टार दिए, हो सकता है अंडरस्कोर हो सकता है कोई लेटर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर को आपको रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो पहला तरीका होता है वह है लीडिंग। क्या होता है, लीडिंग, ध्यान रहे लीडिंग
क्या हटाना चाहते हैं? लीडिंग हम क्या हटाना चाहते हैं? स्टार को हटाना चाहते हैं। लीडिंग स्टार कहाँ से हटाना चाहते हैं? फ्रॉम। ये ध्यान देने की जरूरत है आपको, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो ट्रीम के बारे में, एल ट्रीम आर ट्रीम जो ब्लैंक स्पेस के बारे में था मैंने बता दिया, बट कुछ एडिशन जो है वो ट्रीम के साथ होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से जो स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ स्पेशल कैरेक्टर मैंने यूज किया स्टार, तो लेफ्ट साइड से स्टार को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लीडिंग यूज करना पड़ेगा। तो लीडिंग का मतलब क्या है? लीडिंग स्टार। लीडिंग स्टार का मतलब लेफ्ट साइड से जो स्टार है उसको रिमूव करो। किससे? स्ट्रिंग से। तो जो मेरा स्ट्रिंग है, तो आप देखेंगे यहाँ से, तो अमलेश कुमार में जो लेफ्ट साइड से जो स्टार है वह रिमूव हो जाएगा, राइट साइड का स्टार रहेगा आपको। आई होप दिस इज क्लियर। लेफ्ट साइड से यदि कोई स्पेशल कैरेक्टर हटाना है तो यूज लीडिंग। व्हाट कैरेक्टर, व्हाट स्पेशल कैरेक्टर यू हैव टू रिमूव, यू हैव टू मेंशन देयर फ्रॉम विच स्ट्रिंग वह स्ट्रिंग पास करना है। द सेम वे इफ यू वांट टू रिमूव फ्रॉम राइट साइड देन आपको यूज करना पड़ेगा ट्रेलिंग, TRAILING, ट्रेलिंग। अब ये क्या करेगा? राइट साइड से रिमूव करेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का रह गया, लेफ्ट साइड का रह गया, राइट साइड से रिमूव हो गया। बट इफ यू वांट टू रिमूव अ स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग फ्रॉम बोथ साइड देन इसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। वह कीवर्ड है बोथ। आप देखेंगे कि दोनों साइड से जो है स्पेशल कैरेक्टर जो स्टार है उसको रिमूव कर देगा। ध्यान से देख चुके हैं, सिंपली दी ट्रीम यूज कर रहे हैं विदाउट लीडिंग, विदाउट ट्रेलिंग, विदाउट बोथ, तो ओनली ब्लैंक स्पेस विल बी रिमूव फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड। बट इफ यू आर यूजिंग लीडिंग विथ ट्रीम एंड पासिंग द स्पेशल सिंबल्स, तो वह लेफ्ट साइड से जो स्पेशल सिंबल्स है उसको रिमूव करेगा। तो आई होप सारी जो स्ट्रिंग फंक्शंस जो 12th के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि स्ट्रिंग फंक्शंस रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यू मस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स and you will definitely get the solution. So thank you very much for watching this video. अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।